morning students. Today we are going to start our new topic, the sound and its character. Means the characters of the sound wave, or in other words it is also called, or it is also asked as the properties of the sound wave. Okay, so first of all, what are the properties of the sound wave? Properties means how do we identify कि sound wave के पास कौन कौन सी properties होती है, कैसे हम उसे identify करेंगे. So first of all, a sound wave has frequency, time period, amplitude, pitch, loudness, speed and velocity. Okay, speed and velocity. These are the certain common characters that a sound wave has. Okay, the SI unit of frequency is loudness. Sorry, SI unit of frequency is hertz. For time period, it is per second, oscillation per second. Amplitude it is meter. For pitch again it is meter. Loudness के लिए डेसिबल होती है, एंड स्पीड और वेलोसिटी के लिए मीटर पर सेकंड होती है. ठीक है, किसी भी साउंड वेव में क्या होती है, जो फ्रीक्वेंसी जो उसके कैरेक्टर्स होते हैं, जनरली फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, एम्पलीट्यूड, पिच, लाउडनेस, स्पीड एंड वेलोसिटी, ये उसके क्या होते हैं, कॉमन कैरेक्टर्स होते हैं. नाउ वन बाय वन वी आर गोइंग टू डिस्कस. So in earlier classes we had discussed that the sound moves in form of vibration. Vibrations means किसी mean position या किसी एक place के दोनों तरफ object vibrate करेगा. Either it is vibrating left and right to the mean position, or it is vibrating up and down to the mean position. ठीक है, हो सकता है कि वो सेम प्लेस पे ही इस तरीके से मूव कर रहा हो, बट ज्यादा बेटर वे से समझने के लिए हमने एज्यूम कर लिया कि रियल में भी वैसे ऐसा होता है कि साउंड वेव आगे की तरफ मूव कर रहा है, तो पार्टिकल्स भी थोड़ा सा अपनी जगह से डिसलोकेट होके आगे की तरफ जा रहे हैं. ठीक है, सो अर्लियर क्लासेस में हमने डिस्कस किया था अबाउट पेंडुलम. एक पेंडुलम, उसका बॉब जो है कि एक फिक्स पोजीशन से लटका हुआ होता है, एंड ड्यूरिंग द मोशन इट डू ऑसिलेटरी मूवमेंट फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, then C and again reaches to D. ठीक है, so point A is the mean position or the resting position. Mean position for the sound waves and resting position or mean position again for the pendulum, because at the rest the particles lie there, so it is also called resting position, and during the motion they move around this mean position. वो इस mean position के ही दोनों तरफ क्या करते हैं, move करते हैं, so it is called मीन पोजीशन और रेस्टिंग पोजीशन. ठीक है, नॉर्मली हमने वन ऑसिलेशन के बारे में पढ़ा है, दैट वन ऑसिलेशन इज द मूवमेंट फ्रॉम ए टू बी, देन टू सी एंड देन टू डी. मीन्स फ्रॉम ए टू बी, सी एंड डी इज द वन ऑसिलेशन. ठीक है, इसी चीज को हम अगर वर्टिकल वे में, सॉरी हॉरिजॉन्टल वे में मानते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है वर्टिकली मूव कर रहा है एज वेल एज वो आगे भी बढ़ रहा है, तो उसका जो ऑसिलेटरी मोशन होगा वो समथिंग लाइक दिस होगा. वो समथिंग लाइक क्या होगा, दिस होगा. तो ऑब्जेक्ट जब एक बार मीन पोजीशन से चल करके और दोबारा से वहां पर पहुंचता है, तो इट इज कॉल्ड वन ऑसिलेशन. जैसे यहाँ पे मूव करके इट इज वन ऑसिलेशन. ठीक है, वन ऑसिलेशन कंप्लीट करने में ऑब्जेक्ट जो भी डिस्टेंस ट्रेवल करता है, और द पार्टिकल ट्रेवल द डिस्टेंस टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, इट्स कॉल्ड इट्स वेवलेंथ. वो क्या कहा जाता है, उसकी वेवलेंथ कहा जाता है, या साउंड का जो टोटल वन ऑसिलेशन की डिस्टेंस है. क्लियर, फर्स्ट थिंग. सेकेंडली फ्रीक्वेंसी. सेकेंडली क्या है, फ्रीक्वेंसी. तो सबसे पहले हमें साइड में बॉब की एक ड्रॉ चाहिए होगी, सो वी आर गोइंग टू मेक A, B, C, D. The very first is the frequency.
We had discussed about the oscillation. Now frequency. Frequency is the number of oscillations in an unit time. Generally it is per second. For the standard way, it is the number of oscillation per second. Yeah, number of oscillation done by a vibrating object in 1 second. But it is also stated that it is the number of oscillation done by a vibrating object in a unit time. Its frequency is hertz. इसकी frequency हमने अभी discuss की थी, that its frequency SI unit is hertz. In the honor of the discoverer. Then second is the time period. Second one is the second character is time period. Now time period is the time taken to complete one oscillation. It is the time taken to complete one oscillation. What is time period? So time period is the time taken to complete one oscillation. Means ऑब्जेक्ट को मोशन के टाइम में वन ऑसिलेशन कंप्लीट करने में, वन मीन पोजीशन से वन ऑसिलेशन कंप्लीट करने में जो भी टाइम लगता है, ये उसका टाइम पीरियड कहा जाता है. इसकी SI यूनिट होती है सेकेंड. क्या होती है? SI यूनिट इज सेकेंड. The next one is the amplitude. What is amplitude? कोई भी ऑब्जेक्ट अपने मीन पोजीशन से वन साइड जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट करता है, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द vibrating body from its mean position in one side is called its amplitude. It is the maximum displacement of a vibrating body from its mean position on one side. Again, its SI unit is meter. Amplitude means कोई ऑब्जेक्ट जब वाइब्रेट कर रहा है, जैसे हमने पेंडुलम को देखा है कि पेंडुलम यूं मूव करता रहता है, तो अपनी मीन पोजीशन से वो एक साइड मैक्सिमम कितना डिस्प्लेस कर रहा है. इट इज नॉट द डिस्टेंस, इट इज द डिस्प्लेसमेंट. ओके, दैट इज कॉल्ड इट्स एम्पलीट्यूड. ध्यान दीजिएगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस है. कोई ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से गया और फिर से पॉइंट बी तक पहुंचने के बाद फिर से वहां ए पे आ गया. ठीक है, इमेजिन कीजिए पॉइंट ए से बी की डिस्टेंस है 3 मीटर. कितनी है? पॉइंट ए से बी की डिस्टेंस, पॉइंट ए से बी की डिस्टेंस है 3 मीटर. तो कोई ऑब्जेक्ट जब पॉइंट ए से बी तक गया और फिर से ए पर आ गया, तो उसका जो डिस्टेंस है वो टोटल ऐड कर देंगे, 3 जाना प्लस 3 आना, यानी कि 6 मीटर पर सेकेंड, 6 मीटर. बट अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट होता है ओरिजिन पॉइंट से मैक्सिमम जो डिस्टेंस है, मैक्सिमम जो उसकी डिस्प्लेसमेंट है ओरिजिन और फाइनल पॉइंट के बीच का. पॉइंट ए से चल के अगर वो पॉइंट ए पर दोबारा से आ गया, भले पॉइंट बी तक गया था बट ए पे आ गया फिर से, तो उसकी डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाती है. so, इसीलिए हमने कहा कि पॉइंट ए से बी तक जाने का जो मैक्सिमम वो डिस्टेंस वहां गया होगा वही उसकी डिस्प्लेसमेंट है. तो अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, अगर वो ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से बी तक गया और बी पे ही रुक गया, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही 3 रहेगी. सिमिलरली यहाँ पर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हमने डिस्कस किया कि पॉइंट ए से जब वो ऑसिलेट करके गया तो वहां तक जितनी वो एक साइड मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल किया है वही उसकी डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी. बस वहीं तक का हमें लेना है, वो रिवर्स आ रहा है वो ऐड नहीं करना है. सो इट वुड बी द एम्पलीट्यूड. ओके,
थैंक यू।